morning everyone. So today's chapter is cash flow statement. Cash flow statement is a statement showing inflow, यानी जो भी हम पेमेंट मिलता है या पेमेंट करते हैं तो उसका जो भी हम एक पर्टिकुलर ईयर में शो करते हैं पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स वो आइटम्स जो हमारे कैश रिलेटेड होते हैं, जो हमारे कैश के ट्रांजेक्शन से इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिजनेसेस को. नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. The term cash stand here cash and cash equivalent. It can be prepared for past and it can be projected for a future period. अब जो हमारा कैश है वो किसके अंदर स्टैंड करता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर. एंड ये क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि जो हमारे पास्ट के बेसिस पे एंड फ्यूचर को, ताकि हम इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट कर सकें. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का? फर्स्ट, टू ascertain the sources of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activities. अब हमारी कैश फ्लो के अंदर 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती है. पहली ऑपरेटिंग, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग. टू ascertain the application of cash and cash equivalent under investing and financing activity. Next, to ascertain the net changes in cash and cash equivalent. Fourth, to highlight major activities that have provided cash and that have used cash during a particular period and to show their effect on overall cash balance. अब जैसे कि इसमें क्या होता है, मेन हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती है कि कैश को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और वो जो हमारा कैश है एक पर्टिकुलर पीरियड में एंड उस कैश का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है जो हमारा ओवरऑल कैश बैलेंस है हमारे बिजनेस का, उस पर. नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Cash, it compromise cash in hand, demand deposit with the bank, cash equivalent. इसके कुछ following features हैं. The first feature is 3 month, like that is called short maturity period. And if I will say 1 year or 3 year or 4 year, it will be considered as long maturity period. The second, investment, highly liquid into cash, highly risky and readily convertible. Highly liquid यानी those things which can be convertible into cash form at the time of business need. Highly risky are those investment which involves high risk. Higher the risk, higher the profit. Next, cash and cash equivalent compromises of the following. First, cash in hand. Another one, cash at bank. Third, current investment. Fourth, short-term investment and marketable security. Fifth, checks and draft in on-hand note. अब see here, bank overdraft and cash credit will not be considered as cash and cash equivalent. Why? It will just because bank overdraft and cash credit, according to our accounting standard, it will affect our business transaction, but we won't consider it under cash and cash equivalent. Next, classification of cash flow statement. According to Accounting Standard 3 revised, a cash flow statement should be presented in a manner that it report inflow, and inflow it means received and outflow it means payment, by classifying them into 3 categories. And what are that 3 categories? I already told you. Operating activity, second investing activity, and third one is financing activity. Ab here, cash flow from operating activity. Operating activities are the main revenue generating activities of an enterprise. Operating यानी generally we are operating our business. Okay? तो example, cash received from sale of goods and rendering of service. See, मुझे पैसा मिला, बट मुझे पैसा कहाँ से मिला? जब मैंने मेरे गुड्स को बेचा तो मुझे उससे क्या मिला? पैसा. तो गुड्स बेचना क्या है? वो मेरा एक्टिविटी है, यानी वो मेरा क्या है? बिजनेस है. तो बिजनेस मेरा वो बिजनेस एक्टिविटी है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स ऑपरेशन ओवरऑल जो आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसके बारे में है. तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस. सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू. क्या अब रॉयल्टीज इज वन काइंड ऑफ generally rent. We use different terms for paying rent. So royalty is one of the form of rent. Fees, whatever the charges of particular service has been rendered to you. Commission, like suppose supplier, so he will charges few commission, so that includes under commission and other very few revenues. Third, cash received from debtors and bill receivable. Next, cash flow from operating activities. Here there are few or more examples. Cash payment for purchase of goods and services, like
मैंने कुछ पैसे पे किए, बट मैंने किसके पैसे पे किए? जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा या मुझे सर्विसेज रिसीव हुआ उसका मैंने पे किया। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, कैश पेमेंट यानी जो मेरे उधारी हैं, जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं तो उनको मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें पेमेंट किया। कैश पेमेंट ऑफ वेजेस यानी मैंने सैलरी दिया। अदर्स पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो अदर एम्प्लॉयज़ के हमारे जो कुछ फ्यू पेमेंट्स होते हैं जो मैंने किया, दैट इज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश पेमेंट्स और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद द फाइनेंशिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तब तक जब जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज मैं इनकम पे कर रही हूँ, रिफंड पे कर रही हूँ, तो स्पेसिफिकली जब तक मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेती हूँ कि वो मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इंक्लूड है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इंक्लूड है। Next one is cash flow from investing activities. Here, investing activity include the purchase of sale, long-term asset, plant and machinery, land, buildings, etc. not held for resale. अब वो सारे एक्टिविटीज़ जिसमें मैंने कोई चीज़ खरीदा है, बेचा है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉन्ग टर्म एसेट जैसे लैंड हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब, बट मैंने जो भी ये लिया है दैट इज़ नॉट फॉर रीसेल। मैंने एक बार खरीद लिया, मैं इसको दोबारा नहीं बेचूंगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इसलिए क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इट मीन्स फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस। हियर few examples of investing activity. First one, cash payment to acquire fixed asset like our land, machinery, buildings, intangible asset like goodwill, patents, copyrights, all this thing. Cash received from sale of fixed asset including intangible. अब मुझे कुछ पैसे मिले, कहाँ से? जो मैंने मेरे फिक्स एसेट थे उनको बेच के, या कुछ इंटेंजिबल एसेट्स को भी बेच के कुछ मुझे पैसे मिले। थर्ड, कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, वारंट और डेब्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर enterprises. There are few more examples of investing activity, that is cash received from sale of shares, warrant or debt instrument of other enterprises. Cash loans and advances made to third parties. In case of financial enterprises, this will be treated as cash flow from operating activities. Next, cash repayment of advances and loans made to third parties. In case of financial enterprises, this will be treated as a cash flow from operating activities. Next, cash flow from operating activities. Again, there are few examples. Cash receipt of insurance claim for property involved in the accident. Cash receipt of interest and dividend in case of financial enterprises. This will be treated as our cash flow from operating activities. Next, cash flow from financing activities. Here, those activity which result in change of capital and borrowing of the enterprise. यानी ओवरऑल मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, मैं किसी को फंड करना, एंड बोरिंग, जो मैंने अपने इंटरप्राइजेस के लिए कोई चीज़ें बोरो किया है. Few examples of financing activity. 1. Cash received from issuing of share and similar instrument. Another one, cash payment or buyback of equity share. Buyback of equity share यानी मैंने क्या किया, जो मेरे शेयर्स थे मैंने उनको दोबारा से खरीद लिया. ओके. नेक्स्ट, थर्ड, कैश रिसीव फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग सच एज इशूइंग बॉन्ड्स. बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिवेंचर्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म. Here, cash payment of interim dividend and previous year proposed dividend both are preference shares and equity share. अब यहाँ पे जो हमारे shares हैं वो दो types के हैं. One that is your equity share and another that is preference share. Okay. Cash payment for interest on long term borrowing such as debentures, interest, short term borrowing such as bank overdraft and credit. अब see in long term हम किस टाइप के borrowings देखते हैं? Our debentures, ठीक है, and उस पर जो जैसे हमारे इंटरेस्ट हो गया. अब अगर मैं बताऊं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में मेरे क्या आएंगे, ओवरड्राफ्ट आएंगे एंड कैश क्रेडिट आएंगे. 6th वन, चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. नेक्स्ट, पेमेंट एक्सपेंसेस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे शेयर्स हो गए एंड उसके कुछ इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो. ओके, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, तो सी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी नोट 1. ओके. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करते हैं. फिर हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन डिस्काउंट ऑफ इशू डिवेंचर्स
डिवेंचर्स हो गए, उसके बाद गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सब हमारा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ माइनस करेंगे यानी लेस करेंगे। तो व्हाट आर द आइटम्स जो हमारे उसमें से माइनस होंगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट है मेरा बी। फर्स्ट हमें हमारा जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें पहला हमारा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो भी हमारे आइटम्स जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं, तो पहले वो हम सारा रिकॉर्ड करेंगे। फिर जो हमारा पार्ट भी होगा वो हमारा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। तो जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, जो भी मैंने टेंजिबल एसेट थे मैंने उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। फिर इंटेंजिबल एसेट जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया मेरा, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट and purchase of intangible fixed asset like goodwill and purchase of non-current investment। फिर हम क्या कर देंगे, net cash from used in investing activity and फिर हमारा amount आ जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे वो सारे चीज़ें इंक्लूड होंगी जो मेरे फाइनेंस एक्टिविटी से डील करेंगी। तो इसमें कुछ है जैसे कि मेरा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, पेमेंट ऑफ लोन्स वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। हियर देन we will calculate the whole amount and we will write here net cash from used in financing activity. Here अगेन नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो भी मेरे कैश इक्विवलेंट, फिर यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, मेरे जितने भी तीनों ट्रांजेक्शन थे तो उसका मैं क्या कर दूंगी, टोटल कर दूंगी। तो ये आई विल राइट ए प्लस बी प्लस सी। उसमें फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरे क्वेश्चन में जो मेरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें मुझे गिवन रहेगा कैश एंड कैश इक्विवलेंट बिगनिंग ईयर का, तो उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें ऐड ऑन कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा आएगा लास्ट में टोटल करके जो अमाउंट आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवलेंट एट द एंड ऑफ द year. Here note, calculation of net profit before tax, it's net profit for the current year after appropriation। फिर हम ट्रांसफर ऑफ रिजर्व जो भी मेरे होंगे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बचे होंगे उसको ऐड करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड जो मैंने उस पीरियड में पे किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो मैंने उस करंट ईयर में बनाया, फिर रिफंड ऑफ टैक्स में माइनस कर दूंगी, फिर मेरा टोटल क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अमाउंट्स तो ये डन। थैंक यू सो मच।